Good morning, student. Today we will begin with lecture number 42 on unit number 4, shear force and bending moment. Today we will solve two numericals on just shear force. Simple numericals which was given as an assignment to you. You can today please check on those numerical. The first question, calculate the shear force and draw shear force डायग्राम फॉर द गिवन। यहाँ पे आप देख रहे हैं बीम ए सी सिंपली सपोर्टेड है दोनों साइड में। पॉइंट बी पे एक पॉइंट लोड है 10 न्यूटन का। पॉइंट बी है डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम ए और 0.8 मीटर फ्रॉम सी। टोटल स्पैन है 2 मीटर का। 1.2 प्लस 0.8 इज इक्वल टू 2 मीटर। तो हमेशा की तरह स्टेप्स पहला है कि एंड रिएक्शंस निकालना है आर ए आर सी। एंड रिएक्शंस निकालने के बाद शेयर फोर्स डायग्राम के लिए शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट स्टेप 1, फाइंड एंड रिएक्शन आर ए एंड आर बी। Okay, we'll calculate. Let's see how the answer comes. First, sum of all vertical force, that is summation Fy or sigma Fy, is equal to Ra, that is reaction at A, plus reaction at C, which both are in vertical upward direction. So Ra plus Rc positive, minus 10 load downward direction negative is equal to 0. Why it is 0? Because it is in equilibrium condition. So Ra plus Rc minus 10 is equal to 0. Equation 1. What we get? Ra plus Rc is equal to 10. Taking moment about A, summation m A, that is summation moment about A is equal to Ra multiplied by its perpendicular distance from point A, which is 0, plus Rc multiplied by perpendicular distance between C and A, it is 2. Now since it's in anti-clockwise, so we take it as minus 2, plus 10 into, that is vertical direction downwards, load distance between the point B where the load is acting is B and A is 1.2. If you look from point A, the force 10 kilonewton downward direction is generating a moment of 10 into 1.2. Okay, 10 is the force, 1.2 is the perpendicular distance between B and A, and it is in clockwise direction. So by solving we get Rc is equal to 6 Newton, and substituting this value in equation 1 we get Ra is equal to 10 minus Rc, which is equal to 10 minus 6 is equal to 4 Newton. Step 2, calculation of shear force. At point A, shear force at left of A is equal to shear force SFLA. Now we always take from left to right side. While calculating shear force, we take from left to right side. Shear force we always calculate at points where the forces are acting. So first point is A from left, then B, then C. So we have taken point A. So left of point A is nothing. So shear force left of point A is equal to 0. Second, shear force at point A.
हम क्या करते हैं, लेफ़्ट से हमेशा लेते हैं, लेफ़्ट टू राइट शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, और जहाँ जहाँ फोर्स पॉइंट है, फोर्स पॉइंट यानी फोर्स जहाँ जहाँ पे जिस पॉइंट पे एक्ट हो रहा है पॉइंट लोड, वो पॉइंट पे हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। हम वो पॉइंट पे उसके लेफ़्ट साइड, जस्ट टू द लेफ़्ट ऑफ दैट पॉइंट, लेफ़्ट साइड यानी जस्ट टू द लेफ़्ट है, वो पॉइंट छोड़ के उसके लेफ़्ट साइड तक जितना होता है उतने सारे शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद वो पॉइंट तक, लेफ़्ट से लेके वो पॉइंट तक कितना शेयर फोर्स होता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए शेयर फोर्स एट ए, तो लेफ़्ट से लेके पूरे ए पॉइंट तक क्या है, लेफ़्ट साइड में कुछ भी नहीं है, ए पॉइंट पे रिएक्शन है वर्टिकल अपवर्ड, सो शेयर फोर्स एट ए इज इक्वल टू 4 प्लस 4, बिकॉज साइन कन्वेंशन के हिसाब से अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ए हो गया, बी पॉइंट होता है। बी पॉइंट से जस्ट टू द लेफ्ट पहले लेते हैं, शेयर फोर्स एट जस्ट द लेफ्ट ऑफ बी इज इक्वल टू शेयर फोर्स जस्ट द लेफ्ट ऑफ बी एल इन ब्रैकेट बी। अगर आप पूरा देखेंगे शेयर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी यानी बी पॉइंट छोड़ के लेफ्ट से शुरू करते हैं तो ए पॉइंट 4 है, 4 कंटिन्यू होता है, बी तक 4 ही है, सिर्फ 4 है। उसके बाद बी पॉइंट पे हम शेयर फोर्स कंसिडर करते हैं, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है, तो पॉइंट बी भी कंसिडर करते हैं, लेफ़्ट से शुरू करते हुए बी पॉइंट तक आके रुकते हैं। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन मत होइए, पहले जो किया हो शेयर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी, जब मैं कहता हूँ जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी, इसका मतलब ये है कि बी पॉइंट और ए पॉइंट या उससे लेफ्ट में सारे पॉइंट कंसिडर करना है, सिर्फ बी पॉइंट छोड़कर, सिर्फ बी पॉइंट छोड़कर, तो वहाँ तक शेयर फोर्स करना है। और शेयर फोर्स एट बी जब कहता है, शेयर फोर्स एट बी जब हम लिखते हैं, इसका मतलब लेफ्ट से सारे शेयर फोर्स कंसिडर करते 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 बी पॉइंट पे जो है फोर्सेस वो भी कंसिडर करना है। इसलिए इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो शेयर फोर्स एट बी इज इक्वल टू, सबसे लेफ्ट में है 4, रिएक्शन आर ए 4 अपवर्ड डायरेक्शन में है तो 4 लिया, फिर उस बीच में कोई भी फोर्स नहीं तो 4 कंटिन्यू हुआ। हम बी पॉइंट पे आते हैं, बी पॉइंट पे लोड है 10 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड यानी -10, तो शेयर फोर्स हो गया लेफ्ट साइड से 4 - 10 इज इक्वल टू -6। नेक्स्ट शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, जनरली हम पॉइंट सी बोलते हैं तो पॉइंट सी में लेफ्ट ऑफ सी और एट सी को कंसिडर करके पॉइंट सी, शेयर फोर्स एट लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट ऑफ सी से फिर से हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, ए पॉइंट से आर ए 4 अपवर्ड डायरेक्शन में आगे आएंगे, फिर 10 किलो न्यूटन लोड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -10 लिया हमने, -10 लेके आता है -6 न्यूटन। अब ये जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी यानी सी पॉइंट छोड़ के हमने कैलकुलेट किया, 4 - 10 इज इक्वल टू -6। सी पॉइंट लीजिए, सी पॉइंट शेयर फोर्स एट सी इज इक्वल टू, लेफ्ट से फिर से शुरू करते हैं, ए पॉइंट पे 4 किलो न्यूटन, रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में तो +4, उसके बाद -10 वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जैसे आगे आते हैं तो सी पॉइंट पे रिएक्शन एट सी प्लस सी, रिएक्शन एट सी प्लस सी अपवर्ड डायरेक्शन में +6, रिएक्शन एट सी +6, सो 4 - 10 +6 इज इक्वल टू 0। आई रिपीट, 4 आर ए 4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में -10 प्लस रिएक्शन अपवर्ड आर सी इज +6, सो सब टोटल हो, सबका समीशन होता है 0। शेयर फोर्स डायग्राम, तो हमने शुरू किया शेयर फोर्स टू द लेफ्ट ऑफ ए 0 तो 0,
शेयर फोर्स एट ए 4 न्यूटन पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 4 न्यूटन का एक पॉइंट ऊपर ड्रॉप डाल दिया। उसके बाद हम पॉइंट बी पे आते हैं। पॉइंट बी पे शेयर फोर्स टू द लेफ्ट ऑफ बी 4 है, तो 4 एक पॉइंट ऊपर मार्क कर दिया, ठीक है। और फिर इस ए पॉइंट से 0 to 4 ज्वाइन किया, फिर 4 to 4 न्यूटन सेम लेवल पे है तो वो ज्वाइन किया। उसके बाद शेयर फोर्स एट बी, शेयर फोर्स एट बी -6 आता है, तो -6 यानी रेड लाइन बीम को हम रेफरेंस पकड़ते हैं, 0 पकड़ते हैं, उसके ऊपर पॉजिटिव, उसके नीचे नेगेटिव, तो -6 नीचे तक आ गया, ऊपर +4 और नीचे -6। फिर आगे बढ़ते हैं, शेयर फोर्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो -6 न्यूटन आता है, तो -6 न्यूटन वहाँ एक पॉइंट मार्क करते हैं, वो पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ते हैं, तो आगे के लिए पॉइंट सी पे टोटल आता है 0। समेशन शेयर फोर्स एट पॉइंट सी 0 आता है, तो 0 पॉइंट पे हम मार्क करते हैं। ऐसा सब जोड़ दिया आपने तो हमें इस प्रकार का डायग्राम मिलता है, तो इस तरह से आपको शेयर फोर्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करना है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कैलकुलेट द शेयर फोर्स एंड ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम फॉर द गिवन फिगर। नीचे गिवन फिगर दिया है, रेड में पूरा है बीम और उसके बाजू एंड सपोर्ट में ब्लैक में एरोज अपवर्ड, आर ए आर बी। लोड दिया है 5 किलो न्यूटन एट पॉइंट बी, 5 न्यूटन एट पॉइंट बी एंड 10 न्यूटन एट पॉइंट सी। ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 0.5 मीटर, ए और सी के बीच में डिस्टेंस है 1.2 मीटर, सी और डी के बीच में डिस्टेंस है 0.8 मीटर, सी और डी के बीच में डिस्टेंस है 0.8 मीटर। टोटल स्पैन है 2 मीटर, दैट इज ए और सी का डिस्टेंस होता है 1.2 मीटर, ए और सी का डिस्टेंस 1.2 प्लस सी और डी का डिस्टेंस 0.8, 1.2 प्लस 0.8 2 मीटर। I hope the diagram is clear to you. Same step 1, sum of all vertical forces, that is summation Fy, that is sigma Fy. First reaction Ra at point A plus reaction Rd plus upward direction point minus 10 Newton load downward direction minus 5 Newton load downward direction. Since it is in equilibrium, we equate it to 0. So summation Fy is equal to Ra plus Rd minus 10 minus 5 is equal to 0. By simplifying, we get Ra plus Rd is equal to 15. Taking moment about A. So summation Ma, that is sigma Ma. We have to take moment about A. So first force is Ra into perpendicular distance between point A. Ra का point of application A है, उसका perpendicular distance वो point से 0 है, तो Ra into 0. Next Rd reaction D, point of application D है, तो D और A के बीच में distance कितना होता है 2 मीटर. So Rd, that is the force Rd into reaction at D into T into 2, Rd into 2, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस Rd into 2. नेक्स्ट प्लस 10 न्यूटन लोड एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन. So point of that is C point. So distance AC is 1.2 meter. So plus 10 into 1.2 meter because it is acting in a clockwise manner. Next reaction at point load at point B, that is 5.
and perpendicular distance between point B and A is 0.5. So 5 into 0.5 is equal to 0. Total sum we have to equate is 0 because we take it in equilibrium condition. By solving, we get RD is equal to 7.25 Newton. By solving, we get RD is equal to 7.25 Newton. And RA is equal to 15 minus RD, that is, this we get is from equation 1, is equal to 15 minus 7.25 is equal to 7.75 Newton. So we get RA and RD. Step 2, calculation of shear force. तो अगेन हम shear force कैलकुलेट करते हैं, सारे पॉइंट कंसीडर करते हैं जहाँ पे फोर्सेस, पॉइंट लोड फोर्सेस एक्ट हो रहा है. कौन से पॉइंट है कंसिडरेशन के लिए? पॉइंट ए एंड रिएक्शन पे, उसके बाद पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी. तो चारों पॉइंट हम कंसीडर करेंगे शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए. ये चार पॉइंट के आसपास ही शेयर फोर्स कैलकुलेट होता है, या पॉइंट कंसीडर करके शेयर फोर्स कैलकुलेट किया जाता है. एट पॉइंट ए शुरुआत करते हैं. पॉइंट ए हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं. तो पॉइंट ए, उसमें पहले दो चीज़, शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, जैसे पहले कहा था, ए पॉइंट छोड़ के उसके लेफ्ट तक जितना भी है, उसके लेफ्ट में जितना भी है, तो कितना है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि एंड है ए, उसके आगे कुछ भी नहीं, तो उसके लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, तो ज़ीरो. शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, ज़ीरो. फिर शेयर फोर्स एट ए मतलब पूरा लेफ्ट साइड से कंसीडर करते हुए ए भी कंसीडर करना है. पॉइंट ए पे जो है, तो लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, पॉइंट ए पे है आर ए एक्टिंग वर्टिकल अपवर्ड, सो पॉजिटिव, दैट बिकम्स 7.25. नेक्स्ट आता है पॉइंट बी. पॉइंट बी पे भी जस्ट लेफ्ट ऑफ बी कंसीडर करना है और पॉइंट बी पे भी करना है. तो शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ पॉइंट बी, अगर कंसीडर करते हैं, लेफ्ट में क्या है? आर ए है, अपवर्ड डायरेक्शन में 7.25, तो 7.25. अब शेयर फोर्स एट बी, शेयर फोर्स डायरेक्टली एट बी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना है? लेफ्ट से शुरू करते हैं तो 7.25, और बी पॉइंट पे वर्टिकल फोर्स 5 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड्स. सो 7.25 माइनस 5 हो जाता है 2.25. Next point is at point C. तो अगेन शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट सी छोड़ के कंसिडर करते हैं. तो कौन से फोर्सेस है? आर ए 7.25 अपवर्ड डायरेक्शन में, तो प्लस उसके बाद 5 न्यूटन लोड माइनस 5, सो यू गेट 7.25 माइनस 5 इज इक्वल टू 2.25 न्यूटन. उसके बाद शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, यानी सी पॉइंट पे जो फोर्स है वो भी कंसिडर करना है. फिर से लेफ्ट से शुरू करते हैं. 7.25 माइनस 5, दैट इज बी पॉइंट पे 5 किलो न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड. फिर आते हैं सी पॉइंट पे -10 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड. सबका समीशन कितना होता है? -7.85 न्यूटन. नेक्स्ट एट पॉइंट डी पे भी वैसे ही जस्ट लेफ्ट ऑफ डी पे कैलकुलेट करना है शेयर फोर्स, और पॉइंट डी पे भी शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है. पॉइंट डी शेयर फोर्स लेफ्ट ऑफ डी, यानी पॉइंट डी छोड़ के जस्ट लेफ्ट ऑफ पॉइंट डी. शुरुआत फिर से वही 7.25 आर ए, उसके बाद बी पॉइंट पे 5 किलो न्यूटन लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो माइनस. उसके बाद सी पॉइंट पे -10 न्यूटन लोड एक्टिंग कर रहा है डाउनवर्ड -10, तो हमें मिलता है -7.85 न्यूटन.
फिर उसके बाद शेयर फोर्स एट डी, शेयर फोर्स एट डी में डी पॉइंट भी कंसिडर करना है। सो यू गेट 7.25 -5 -10, और डी पॉइंट पे डी रिएक्शन का +7.85 which is equal to 0. So 7.25 -5 -10 +7.85, आर डी अपवर्ड डायरेक्शन में है, +7.85 इज इक्वल टू 0। शेयर फोर्स डायग्राम अगेन कैलकुलेशन से लेके हम डायग्राम है। जस्ट लेफ्ट ऑफ ए 0, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है शेयर फोर्स एट ए 7.25, तो ए पॉइंट से 0 7.25, ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन अपवर्ड। उसके बाद पॉइंट बी पे शेयर फोर्स लेफ्ट ऑफ बी 7.25, तो लेफ्ट ऑफ बी से और प्रीवियस पॉइंट दोनों ज्वाइन किए तो स्ट्रेट आ जाता है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद शेयर फोर्स एट बी 2.25, तो 7.25 से नीचे आता है 2.25, मार्क कीजिए वहाँ पे और लाइन जोड़ दीजिए, दोनों पॉइंट जोड़ दीजिए। उसके बाद पॉइंट सी पे आता है, जस्ट लेफ्ट ऑफ पॉइंट से अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन में तो 2.25 है, तो ये एक पॉइंट आ गया है, तो 2.25 पॉइंट बीम से ऊपर 2.25 ये पॉइंट मार्क कीजिए और दोनों जोड़ दीजिए। उसके बाद पॉइंट सी पे देखते हैं तो -7.75 आ रहा है, यानी -7.05, 0 सॉरी ए डी, बीम ए डी ये जो है रेफरेंस लाइन है, उसके ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो फिर पॉइंट सी से लेके नीचे 7.75 मार्क करते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है, वो तो ज्वाइन कर दिए तो आपको मिलता है 7.75 की स्ट्रेट लाइन पॉइंट सी से। तो उसके बाद आगे कैलकुलेट करते हैं शेयर फोर्स, तो आप देखेंगे कैलकुलेशन में शेयर फोर्स जस्ट लेफ्ट ऑफ डी, जस्ट लेफ्ट ऑफ डी कितना आ रहा है -7.75, ये पॉइंट मार्क करते हैं और पहले पॉइंट ये पॉइंट ज्वाइन कर लेते हैं। एंड में शेयर फोर्स एट डी, शेयर फोर्स एट डी 0 है, तो वापस 0 पॉइंट तक मार्क करते हैं, यानी बीम पे है और जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से हमको शेयर फोर्स डायग्राम मिलता है, प्राप्त होता है। सो स्टूडेंट, these are much easier. I will take much more easier problem again, but variety of problem in the next lecture. I hope you have understood. Okay, and for this you personally for to learn this you personally have to solve numerical. You personally have to solve numerical. Then and only you will be able to understand it. You will be able to apply it. Okay. Thank you, student. Thank you.